5 नवंबर को विश्व ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स दिवस पहली बार जिसे इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग के रूप में मनाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट सफदरजंग हॉस्पिटल, स्पेनियल इंजरी सेंटर बसंतपुर के सैकड़ों डॉक्टर, नर्स, छात्रों और सामाजिक संस्थानों ने कनॉट प्लेस से कार्यालय ITO तक पैदल मार्च, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकाला और लोगों को जागरूक किया। देश में 21 तरह की विकलांगता को मान्यता सरकार ने दे रखी है, जिसमें उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ मिलता है। वही जिनका किसी तरह शारीरिक भाग, पोलियो या अन्य कारणों से हाथ और पैर बेकार और खराब हो जाते हैं, उनको पूरी तरह सहायता उपलब्ध की जाती है, जिसमें समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी में ऐसे लोगों को कृत्रिम हाथ व पैर बनाकर दिए जाते हैं। वही यहाँ हर वर्ष सैकड़ों छात्र शिक्षा भी ले रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर आनंद भट्ट, डॉक्टर MC दास एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। Purvanath and on behalf of PDUNI PPD and OPI, I am glad to welcome you all on this awareness rally on the occasion of International Prosthetics and Orthotics Day. This year, ISPO, International Society for Prosthetics and Orthotics, declared 5th November as the International P&O Day to be celebrated every year from this day onwards. It is truly a surreal moment to be present at the first ever celebration of International P&O Day. And what better way to do it than an awareness rally to help people understand about this crucial profession that contributes so much in a patient's well-being and rehabilitation. Let's take a moment to realize that this is a beginning of a very monumental path for our profession. I won't be exaggerating if I say that this moment, this day, this rally, this is history being made right here, right now. And I am glad to share it with you all. First of all, let me explain the role of a P&O professional in a simplified manner. All over the world, people lose limbs or suffer orthopedic impairments for many reasons, including accidents, combat injuries, birth defects and diseases. We are healthcare professionals who specialize in prosthetics and orthotics. We help patients regain their mobility by fitting them with prosthetics limb or orthopedic braces. P&O practitioners perform a detailed assessment to determine the patient's needs and assesses the patient's functional status, including muscle development, gait, sensory function, range of motion, joint stability and skin integrity. For every patient, we develop a plan that... All of you, thank you very much, Ms. Apurva. As everybody knows, today is the first International Prosthetics and Orthotics Day, and it has been celebrated worldwide. So in India, as a part of this celebration, Orthotics and Prosthetics Association of India has taken a keen interest throughout the country to celebrate this event in a grand success. And in Delhi, the Delhi branch of OPI has taken extensive measures and extensive efforts to celebrate this event. And all the students from the national institutes, that is PDUNI PPD, Safdarjung Hospital, ISIC, Indian Spinal Injury Center, all the faculties, practitioners in Delhi, multinational companies, everybody has taken keen interest in taking the part in this wonderful awareness creation.
आज़ादी के 75 साल के बाद आज हम पहली बार हैंडीकैप विकलांग दिवस के रूप में इंटरनेशनल ने घोषित किया कि नवंबर को मना रहे हैं। इतना गैप क्यों, क्या कारण है? मैं आपको कहना चाहूँगा कि विकलांग दिवस नहीं है, दिव्यांगजन का एक हिस्सा जो है, जो जिनका अंग विकार होता है, हाथ और पैर के अंग विकार है, जिनको हम लोग ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेसिस जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वो कृत्रिम अंग दान कर सकते हैं, कृत्रिम अंग बना करके दे सकते हैं। आज उनका दिवस है। ऐसे 3 दिसंबर है जो दिव्यांगजन दिवस है, वर्ल्ड डे ऑफ डिसेबिलिटी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आज ही पहला दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन जो है ना, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस आज का दिन में फाउंडेशन हुआ था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कि इस तरह के हाथ और पैर से जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये जो एक दीक है, जो ऑर्थोसिस और एंड प्रोस्थेसिस का जो ये शाखा है, ये उनके लिए काम कर सकता है और उनके लिए कारगर भी है। किस तरह की विकलांगता को सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन आज भी उनके लिए रोजगार जो है सरकार का जो है उसकी जो लायबिलिटी बहुत कम है। कहाँ किस तरीके से हमें करना चाहिए सरकार को? हमारे देश में अभी स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ा कह रहा है विश्व में सबसे ज़्यादा दिव्यांगजन हैं हमारे देश में। जी, उनके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तरह तरह की योजनाएं चला रही है। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको शिक्षा में छात्रवृत्ति, उनके जो छोटे बच्चे हैं, दिव्यांग छोटे बच्चे हैं, उनको उनके विकास के लिए दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है। और भारत सरकार 6 तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हाँ, तो इस तरह का 6 तरह के स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन ही उनको स्कॉलरशिप स्कीम्स डिलीवर भी होता है। तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी काम हो रहा है दिव्यांगजनों के को पुनर्वास कराने के लिए। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस काम कर रहे हैं। मैं उस विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत था पिछले 7 साल में काम किया। हाँ, तो इस साल से डिक्लेयर किया है 5 नवंबर को। अच्छा, ये देश के लेवल पे हमने सोचा कि हमारा एसोसिएशन है, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किस तरीके से मनाया आपने ये? हमने सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना था, जागरूकता बढ़ाने जरूरी थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि विकलांग के लिए क्या सेवाएं उपलब्ध है। क्या क्या सेवाएं? विकलांग के लिए हर सेवा उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में। जिनका हाथ पैर की कोई तकलीफ हो, हाथ पैर लग जाता है, तो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं। और भी जो भी संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पे इलाज होती है। ये रैली टाइप की जो आपने निकाली है, कहाँ से कहाँ तक निकाली है? ये रैली जो है हमने कनाट प्लेस इनर सर्कल राजीव चौक से हमने स्टार्ट किया है। वहाँ पे एक अवेयरनेस का नाटक भी किया है। वहाँ से फिर हम लोग जो है रैली लेके जागरूकता के लिए ये सब निकाला गया। हाँ, जागरूकता के लिए। कैसा संदेश गया है इसका? संदेश बहुत अच्छा गया है। बहुत लोग अपना इंटरेस्ट दिखाए, हमसे आके पूछे कि आप लोग क्या है, आप लोग क्या काम करते हैं और किसको सेवा करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि लोगों को हमने जो सोचा था वो पूरा सफल हुआ है जो हमारी रैली। जी सर, आप पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि ये हमारा पहली इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डे है। और ये हम दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा संदेश है कि ये प्रोफेशन आने वाले समय में दिव्यांगजन के लिए जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उनको हम पूरे देश में जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 4.5 साल की इसकी डिग्री कोर्स शुरू होती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरे हिंदुस्तान क्या इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में एक संदेश देंगे कि जो दिव्यांगजन है उनको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं।
दिव्यांगों के लिए वैसे क्या क्या खास आपने रखा है? सर, दिव्यांगों के लिए जो भी दिव्यांग है, जैसे उसमें जैसे ऑर्थोटिक करके एक वर्ड आता है कि जो अगर पैरालिटिक के पेशेंट्स हैं, अगर उसके अंदर कोई फुट ड्रॉप की टेंडेंसी है या रिस्ट ड्रॉप की टेंडेंसी है, तो उसके अंदर जब हम स्प्लिंट बनाते हैं तो ये प्रोफेशनल जो है उनको स्प्लिंट लगा के उनके जो डिफॉर्मिटी है उनको करेक्शन देते हैं। या किसी तरह से अगर उनका मान लीजिए मिसिंग ऑफ लिम्ब हो जाता है या उनका एम्पुटेशन हो जाता है तो उनको हम लोग इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे लोअर लिम्ब में अगर मान लीजिए अगर उनका एम्पुटेशन होता है आर्टिफिशियल लिम्ब के द्वारा हम उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ ऐसे देखा गया है कि वो नॉर्मल की तरह अपना बिहेवियर करते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना, साइकिल चलाना, गेम खेलना। और ऊपर अगर मान लीजिए एम्पुटेशन हो जाता है हाथों का, तो उसके लिए हाथ हम लोग ऐसे बनाते हैं कि उनको ये लगता नहीं है कि हमारा वो हैंड कट भी चुका है और वो इंडिपेंडेंट उस हाथ से वर्क करता है। आज की रैली में कौन कौन ने भाग लिया है, किन किन डिपार्टमेंट ने भाग लिया है? ये सर, इसमें मेनली जो है ये इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डे है, तो इस प्रोफेशन के जो हैं लोग हैं और चैंपियन योगा से 3 बार रहे हैं और आज इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक डे भी मनाया जा रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल डे है, वो इतना आज़ादी के 75 साल बाद क्यों हमें इतना ध्यान आया, क्या कारण है? कहीं सरकारी एजेंसी है, क्या कारण बताएं? देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एक दिन में आई नहीं है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और ये रिसर्च का विषय होता है। जब डॉक्टर्स के पास चैलेंजेस आएंगे, जैसे कैंसर का भी स्टेज देखें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हर बीमारी का कुछ स्टेज होता है। तो जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, तो डॉक्टर्स भी उस पर अपना काम करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 70 साल बाद भी हमारी आज़ादी की इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी उतना नहीं थी। अब जैसे विदेशों में टीवी बहुत पहले था, व्हीलचेयर बहुत पहले था, हमारे देश में बहुत बाद में आया, इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत कम आई। या अभी भी बहुत सारे देश जो है 5G 4G यूज़ कर रहे हैं, हमारे देश में बहुत से लोग 4G, अभी 5G लॉन्च हुआ है। तो कहने का मतलब इसमें अवेयरनेस, डिमांड और पेशेंट की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। कब से अब योगा कर रहे हैं और ये आपकी जो विकलांगता है कब से है ये? मैं देखिए, योगा तो मैं 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ और विकलांगता जो मेरी है 9 महीने की उम्र में हो गई थी। मुझे पोलियो हो गया था, तो उसके बाद से ही मैं कैलीपर यूज़ कर रहा हूँ सन 2000 से, और उसको पहन के योग करता हूँ। कब आपको लगा कि हाँ मेरी अंदर कुछ ग्रोथ है, मैं कुछ कर सकता हूँ? और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, किसके से? कौन है आपके आइकॉन मोटिवेशन? मेरे आइकॉन तो मैं कहूँगा मेरे माता पिता ही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी थी भाई आप अपने बच्चों को योग कराएं, इससे इसके पैर में थोड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि इन चीज़ों के सहारे तो वो चल सकता है, लेकिन खुद के भी लाइफ के जो डेली रूटीन्स के वर्क हैं वो इसके बगैर भी कर पाए, तो आप इनको योग का अभ्यास करवाते रहें। तो कितने समय से आपको ये लगा है? मैं सन 2000 से पहन रहा हूँ और मैंने डिफरेंट इसमें कैलीपर देखे हैं। जैसा आपका सवाल था कि क्यों कमाया, तो पहले हमारे देश में आपने टीवीज़ पे भी देखा होगा, एक ब्लैक कलर का शूज होता था, उसमें ये रॉड लगा होता था। तो ये उस तरह का दौर भी मैंने देखा है, 1995 की बात है, तो वो दौर भी देखा है। फिर उसके बाद ये बिना शूज़ वाले आए, और जो मैं कैलीपर पहन रहा हूँ तो ये लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट है। तो ये अभी भी लोगों को पहली बात अवेयरनेस नहीं है, और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, दिक्कत ये टेक्नोलॉजी विदेशों में अवेलेबल है। ऐसे ऐसे कैलीपर्स हैं जो पहन के बंदे दौड़ सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हैं और हमारे देश में उतनी जागरूकता नहीं है। तो ज़रूरत है डॉक्टर्स को और ट्रेनिंग देने की और नए कोर्स लाने की। योगा तो आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल 3 बार चैंपियन भी रहे हैं, और क्या क्या आपके अंदर ख्वाब है कि वो पूरे करने हैं? अभी क्या रहता है? हाँ देखिए, वैसे तो मैं वकील भी हूँ और मैं सामाजिक मुद्दों के लिए दिव्यांगों की लड़ाई कर रहा हूँ, और आज यहाँ पे कार्यक्रम में आने का और परफॉर्मेंस देने का यही उद्देश्य था कि इस कैलीपर को मैं कैसे करके चल रहा हूँ। तो ये भी हमारे लिए एक सोशल वर्क ही है, समाज को अवेयर करना भी हमारा दायित्व बनता है। हमारे संविधान में भी लिखा है कि हम केवल, हमारा जो मोरल राइट है, लीगल ड्यूटी एक अलग चीज़ हो गई, वोटिंग देना आपका एक लीगल ड्यूटी हो सकता है, लेकिन आपका मोरल राइट भी है कि लोगों को जागरूक करें, उनको अवेयर करें। तो मैं एडवोकेट होने के साथ साथ इस